In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. The lecture is for grade 2 for the subject of English, and we are doing our unit number 13, which is a letter. We have done reading and question answers from this unit, and this is the lecture number 2 from unit number 13. What are we going to learn in this lesson? We will study about comparing things. We will see that when we compare some adjectives, how they are formed and how they are changed with respect to their wording, with their spells, etc. Then we will learn about the use of commas. जैसे आपने इस लेटर में पढ़ा था, इसमें आपने देखा था कि एड्रेस यूज़ होता है, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि जो लेटर है वो कहाँ पे सेंड होना है, एग्जैक्ट लोकेशन देना होती है, जिसके लिए हम एड्रेस लिखते हैं। और आपने देखा था कि एड्रेस का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ कॉमास होते हैं, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ कॉमा किस तरह से एड्रेस में यूज़ किया जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट में हम कॉमा को किस तरह से यूज़ करते हैं। Okay, dear students, before we begin, please make sure that you have your book, your notebook and your complete stationery available with you. You should have your English student's book and your classwork notebook with you. Listen to the teacher very carefully and attentively and follow all the given instructions. Your pencil should be sharp and your eraser should be very neat. Okay, and if you need to write down anything when you are doing your writing work, you will pause the video and complete your writing work calmly and peacefully, and then you will continue the lecture. If you don't understand anything, you can rewind the video and listen to the things again as they are recorded for you. Okay, please open your English student's book, page number 72. Mark date and day on the top of this page. The section we are going to begin in this lecture is language portion, and we are going to do the topic comparing things. Comparing things. Okay, when we compare two things, we add er to the word. For example, Kamran is fast. Here it is no any comparison between two nouns or their quality. Here the one noun is used with its own quality, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं डिस्क्राइब किया हुआ कि कामरान जो है वो किससे फास्ट है या कामरान सबसे फास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया है कि कामरान इज़ फास्ट, किसी टाइप का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब हम दो नाउन्स की किसी क्वालिटी को, किसी एट्रीब्यूट को कंपेयर करते हैं तो हम किस तरह से चेंज करते हैं? वी ऐड er टू द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, परवीन इज़ फास्टर देन कामरान. Here you can see a comparison is used between Parveen and Kamran, that Parveen is faster than Kamran. जब हमने दो नाउन्स की किसी एट्रीब्यूट को, किसी क्वालिटी को, किसी एडजेक्टिव को कंपेयर किया कि एक दूसरे से फास्टर है, तो फास्ट वर्ड क्या बन गया? फास्टर. फास्ट क्या बन गया? फास्टर. वेरी गुड. वी एडेड er टू द वर्ड फास्ट. और हमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है? वी यूज्ड द वर्ड देन, THAN, देन. इससे हमें क्या पता चला कि कोई दो नाउन्स का कंपैरिजन है. Parveen is faster than Kamran. Did you understand it? Very good. Come to page number 73. Question number 1, which is complete these sentences comparing two things. Okay. For example, Amina is dash then Annie, and the adjective is young. When here the word then is used, it means that there is a comparison between Amna and Annie. So we will add er to the word young and it will become younger. Amna is younger than Annie. हमने ये पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करनी है. हमने देखना है कि अगर कंपैरिजन यूज़ हुआ है तो हमने एट्रीब्यूट वर्ड जो है, जो एडजेक्टिव वर्ड है, उसके साथ क्या ऐड करना है? er. Very good. First one is the bike is slow than the car.
अब यहाँ पे कंपैरिजन है बाइक और कार में, और एडजेक्टिव क्या है? स्लो। अब हम क्या करेंगे? We will add er to the word slow and it will become slower. The bike is slower than the car. Very good. You will fill these blanks on your book. The bike is slower than the car. Next sentence is the blue car is dash than the red car. यहाँ पे कंपैरिजन है, ऑफ कोर्स कंपैरिजन है। ब्लू कार और रेड कार के दरमियान क्या है? कंपैरिजन है। द ब्लू कार इज न्यू देन द रेड कार। तो अब हम क्या करेंगे? न्यू एडजेक्टिव वर्ड है, हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे? er, और ये क्या बन जाएगा? न्यूअर। द ब्लू कार इज न्यूअर देन द रेड कार। Very good. Are you filling your blanks on your book? That's good. Third one is I am tall than my brother. यहाँ पे भी कंपैरिजन है। I am tall than my brother. मेरे और मेरे ब्रदर के दरमियान में कंपैरिजन है कि कौन ज़्यादा टॉल है। I am tall than my brother, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम टॉल के साथ क्या ऐड करेंगे? er, और ये क्या बन जाएगा? Taller. I am taller than my brother. Fill the blank on your book. Fourth one is the car is dash than the truck, and the dash में क्या है? Small. The car is small than the truck. अब क्या करेंगे? यहाँ पे कंपैरिजन है कार और ट्रक में। स्मॉल के साथ क्या ऐड करेंगे? er, और वो क्या बन जाएगा? Smaller. The car is smaller than the truck. Fifth one is the chips are dash than the nuts. The chips are cheap than the nuts. Cheap का क्या मतलब होता है? जिसके कम पैसे लगते हैं, जो less expensive होता है। The chips are cheap than the nuts. अब हम क्या करेंगे? cheap के साथ er ऐड करेंगे और वो बन जाएगा cheaper. The chips are cheaper than the nuts. Sixth one is father is dash than I am. Father is strong than I am. अब हम strong के साथ क्या करेंगे? कंपैरिजन है, तो एडजेक्टिव के साथ er ऐड करेंगे और ये बन जाएगा father is stronger than I am. Father is stronger than I am. Okay, you have done this exercise on your book. Now next exercise 2 on the same page number 73. It is add er to each of the words in brackets. Similarly, जैसे आपने exercise 1 में किया, इसमें भी आप क्या करेंगे? er ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रूल है। रूल क्या है कि जिन एडजेक्टिव्स के एंड पे y आता है, जिन एडजेक्टिव्स के एंड पे y आता है, जब हम उनका कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि जब सेंटेंस में कंपैरिजन आ गया है और एडजेक्टिव वर्ड के एंड पे y है और हमें अब क्या करना है? er ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं? y को कट करके ier लिख देते हैं। y is replaced with IER. अंडरस्टैंड? ओके, अब हम देखेंगे कि जिन वर्ड्स के एंड पे y आ गया है, हम उसे कट करके IER लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस एग्जाम्पल में क्या है? माई सिस्टर इज़ लेजियर देन आई एम। अब लेजी वर्ड के एंड पे y था, हमने y को रिप्लेस कर दिया IER के साथ। हमने ये नहीं किया LAZYER, नो। क्या हुआ? y रिप्लेस हो गया I के साथ एंड देन ER। माई सिस्टर इज़ लेजियर देन आई एम, और लेजियर के स्पेलिंग्स क्या हो गए? LAZIER। Okay, here on page number 73, exercise 2, the first sentence is he was happy then when I last saw him. He was happy then when I last saw him. इसका क्या मतलब है कि अब वो हैप्पी था, उससे जब मैंने उसे पहले देखा था तो वो कम हैप्पी था, अब वो ज़्यादा हैप्पी था। तो दो टाइम्स के दरमियान
कंपैरिजन हुआ है ना. ही वॉज हैप्पियर. हैप्पियर जब हम बनाएंगे वर्ड तो हैप्पी के एंड पे वाई है तो हम क्या करेंगे, हम y को रिप्लेस कर देंगे I के साथ और साथ में ER ऐड हो जाएगा. ही वॉज हैप्पियर देन व्हेन आई लॉस्ट सॉ हिम. और यहाँ पे हैप्पियर में क्या होगा, y इज रिप्लेस्ड विद I एंड देन ERHAPPIER. ही वॉज हैप्पियर देन व्हेन आई लास्ट सॉ हिम. You will fill the blanks on your book. Sentence number 2 is, your book is long than mine. Long एक कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा है, सो हम सिंपली ER ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा longer. Your book is longer than mine. तुम्हारी बुक मेरी वाली बुक से लंबी है. mine का क्या मतलब है, मेरी वाली. Is it clear? Your book is longer than mine मतलब कि तुम्हारी बुक मेरी बुक से लंबी है, लॉन्ग है. थर्ड वन इज, दिस क्वेश्चन इज डैश देन द लास्ट वन. ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से, लास्ट वन का क्या मतलब है, पिछला वाला. ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से इजी है तो हम क्या करेंगे, इजी के साथ ER ऐड करेंगे. इजी वर्ड के एंड पे y है, y रिप्लेस हो जाएगा I के साथ और ये बन जाएगा easier. This question is easier than the last one. Sentence number 4 is, he is old than his brother. वो अपने भाई से बड़ा है. He is older than his brother. और older के साथ ER ऐड करने के लिए हमें कोई रूल अप्लाई करना पड़ेगा? No, this word ends with a consonant D, so we will simply add ER with it और ये बन जाएगा, he is older than his brother. Are you filling the blanks on your book? Good. Sentence number 5 is, this book is funny. This book is funny. और हम y को रिप्लेस कर देंगे I के साथ और ये बन जाएगा IER, funnier. This book is funnier. Grandfather is tall than grandmother. Grandfather is taller than grandmother. Have you filled all the blanks on your book? That's very good. Next topic is use of commas. कॉमा किसे कहते हैं, वो जो एक छोटा सा पंक्चुएशन मार्क होता है उसे हम कहते हैं कॉमा. लुक एट द एड्रेस एंड द डेट ऑन दानियाल्स लेटर. ये दानियाल्स लेटर वही वाला लेटर है जो हमने इस लेसन में पढ़ा था. वेयर डू द कॉमास गो, कहाँ कहाँ पे कॉमास आए हैं एड्रेस में. एड्रेस में 26th स्ट्रीट के बाद कॉमा, DHA इसके बाद कॉमा, फेज़ 5 इसके बाद भी कॉमा, कराची के बाद फुल स्टॉप. और जब डेट आई तो डेट में कहाँ था, 5 फरवरी कॉमा 2010. ओके, जब भी हम सेपरेट करते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ तो हम वहाँ पे भी कॉमास यूज़ करते हैं. लेकिन एड्रेस में क्या होता है, एड्रेस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले आप लिखते हैं अपना हाउस नंबर, उसके बाद आता है स्ट्रीट नंबर, उसके बाद आता है आपका टाउन या जो भी आपके एरिया का नाम होता है वो, उसके बाद आता है आपका सिटी. अब इसमें जो सबसे मेन आपके एड्रेस का पार्ट है वो है सिटी. सिटी के बाद हम कुछ भी मेंशन नहीं करते. ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान से पाकिस्तान में ही लेटर लिख रहे हैं. ओके, अब सिटी से पहले जितने भी आपके सब पार्ट्स होते हैं एड्रेस के, फॉर एग्जांपल पहले आपका सबसे पहले आपका हाउस नंबर अगर हो तो सबसे पहले हाउस नंबर, उसके बाद कॉमा, फिर स्ट्रीट नंबर, उसके बाद कॉमा, फिर आपका एरिया टाउन नेम जो भी है उसके बाद कॉमा और फिर एंड पे सिटी और बस. तो यहाँ पे क्या है, 26 स्ट्रीट उसके बाद कॉमा, DHA कॉमा, फेज़ 5 कॉमा, कराची. इसी तरह डेट में 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट क्या है, डेट का 15th फरवरी, उसके बाद कॉमा और उसके बाद 2010 एंड दैट्स ऑल. ओके, you will add commas on your page number 74 of students book.
राइट आउट दीज एड्रेसेस एंड डेट्स पुटिंग कॉमास इन द करेक्ट प्लेसेस। यहाँ पे दो एड्रेसेस और दो डेट्स लिखी हुई हैं, आप उनके दरमियान कॉमास ऐड करेंगे। 14th सनसेट स्ट्रीट DHA कराची 21 फरवरी 2010। अब आपने यहाँ कहाँ कहाँ कॉमा ऐड करना है? 14th सनसेट स्ट्रीट, इसके बाद कॉमा, फिर DHA, इसके बाद कॉमा, और फिर कराची के बाद कॉमा आएगा? नो, क्योंकि ये सिटी नेम है, यहाँ पे एड्रेस एंड हो गया। उसके बाद डेट में 21 फरवरी, इसके बाद कॉमा आएगा। अनदर एड्रेस इज़ दिस 5 क्लब रोड कराची पाकिस्तान। अब यहाँ पे पाकिस्तान भी आ गया है, तो इसके लिए क्या होगा कि हम सिटी के बाद भी कॉमा ऐड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस एंड नहीं हो रहा है। 5 क्लब रोड कॉमा कराची कॉमा, उसके बाद डेट पे आ जाएं 18th जुलाई, इसके बाद कॉमा, एंड देन 2010 एज इट इज़। Add these commas on your book, page number 74. Done? Good. Now let's discuss your homework. From students book, page number 74. You have to do questions on your notebook. Which question? Question number 3 and 4. Question 3 is write out your own address and today's date. आप अपना एड्रेस और डेट लिखेंगे जिसमें आप प्रॉपरली कॉमास ऐड करेंगे, और ये काम आप कहाँ करेंगे? अपनी होमवर्क नोटबुक के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट योर डेट ऑफ बर्थ। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या कौन सी डेट लिखेंगे? आज की डेट, जब आप ये काम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप क्या लिखेंगे? अपना डेट ऑफ बर्थ बाय एडिंग कॉमा इन द राइट प्लेस। इज इट क्लियर? You will do this homework on your homework notebook by preparing your homework page properly and writing your index, etc. everything. Clear? Fine. Another homework is from your workbook, page number 50 and 51. Please, dear grade 2 students, open your diary and note down your today's homework. And your diary is do question 3 and 4. Question 3 and 4 from page number 74 of your students book on your homework notebook. And another diary is do page 50 and 51 on your workbook. Have you done your diary? Good. Get your homework done by the next lesson. Good luck, dear students. This is end of today's lesson. Allah Hafiz.